All right. There is one more question, which is A ship grounding. We had done T1, we had done T2, correct? Yes, sir. T1 में किया था, initial drafts were given, point of grounding was given. We had to calculate the final drafts, and the fall was given. That was T1. Initial drafts given, fall is given, point of G given, to find final drafts, to find P. Correct? Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Then we did T2. T2 में क्या था? Initial drafts given, point of grounding given, and final drafts given. To find P, to find fall, correct? Yes, sir. All right. We're now coming on to T3. In T3, initial drafts are given, final drafts are given. Okay? And fall is given. To find P and to find point of grounding is not given. So we are discussing T3 now. How would you like to attempt and begin the method for T3? Steps for T3. क्या? Steps नहीं। for वहाँ तो का steps for- Please mute your mics. Please mute your mics. हाँ लग जब पानी भेज दो बहुत तेज मतलब लाल हो जाएगी Okay, the steps for T3. Initial drafts are given, final drafts are given. Point of grounding is not given. P is not given. Fall is given.
So if the initial drafts are given and final drafts are given, initial trim, difference, final trim will give me TC. TC. So if I know TC, then P into GF upon MCTC. Now I've got two unknowns. P is unknown and GF is unknown. So I've got a problem. तो दो अननोन आ गए मेरे पास एक इक्वेशन में. अब मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं ये प्रॉब्लम को? So I will calculate initial hydrostatic draft because initial drafts are given to me. I will calculate final hydrostatic draft because final drafts are given to me. The two will give me mean rise. The two will give me a mean rise. And this mean rise will be equal to P upon TPC. P upon TPC. So from here I will get the P. Once I've got the P, go into the TC formula and get GF. Get the GF. Once I've got the GF, then I find out AG. This will give me the point of grounding. Then उसके बाद next step of course is virtual loss of GM. वो मुझे निकालना आता है. And therefore RGM. वो भी निकालना आता है. So this will be the way I'll have to circumvent for T3. So you'll find some questions on T3 in the past papers. So try to locate that. सर ये एमसीटीसी और टीपीसी की वैल्यू भी दी होगी ना क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में सब दी होंगी. ये सब दी होंगी क्योंकि ए शिप का क्वेश्चन है तो इसलिए सब दिया हुआ होगा. और वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ए शिप है. सर ये पास्ट पेपर्स में हम ये लोडिंग डिस्चार्जिंग जहाँ से हुई है वो वेट लोड डिस्चार्ज किया गया है हिंडशिप के क्वेश्चंस में, वो वाले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी. बिल्कुल. प्लीज गो हेड. प्लीज गो हेड. वो तो मैंने आपको ऑलरेडी ठीक बता है. दिया था. आई टोल्ड यू टू प्लीज गो हेड विद दैट. ठीक है सर. या प्लीज गो हेड अप टू क्वेश्चन नंबर 79 तक तो प्लीज गो हेड. ठीक है सर. ओके. Up to question number 79. Please go ahead with that. ओके सर.
ठीक है, कैन आई रेज दिस? यस सर। सर ये जो जीएफ आएगा, हाँ जी, गो अहेड। So this will be dependent on, you will have to see if your initial trim of the vessel was 1 meter stern and the final trim is down by head. तो इसका क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग कहाँ है? पीछे हुई है सर। पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग पीछे है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब पी जो पीछे से एक्ट कर रहा है एंड वो जहाज को ऐसे पुश कर रहा है। सो आपका जो जी एफ आएगा इसमें, वो जी एफ सो मेनी मीटर्स आफ्ट होगा। यहाँ पे आफ्ट लिखोगे आप या फॉरवर्ड लिखोगे, डिपेंडिंग ऑन सर आफ्ट ऑफ फॉर परपेंडिकुलर ऐसे लिखेंगे ना। GF is the distance of the point of grounding from center of flotation. द फ्लोट। यस सर। So GF is aft, 10 meters aft, supposing. तो इसका मतलब ओके क्या सर। है? इसका मतलब अगर आपका LCF 70 meters है and GF is 10 meters aft, 60 हो जाएगा सर। then your AG, फिर AG 60 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। तो वो आपको इनिशियल ट्रिम और फाइनल ट्रिम देख के पता चलेगी। अगर इनिशियल ट्रिम 1 मीटर बाय स्टर्न है and final trim 1 meter by head है, then your G is aft of center of rotation, which has pushed the vessel to go down by head. सर इस केस में सर, हाँ जी सर सेम क्वेश्चन व्हाट यू आर सेइंग सर, इसमें टीसी सर 2 मीटर हो जाएगा ना सर, या फिर 0 रहेगा? क्योंकि इफेक्टिवली तो 2 मीटर चेंज हुई है। अगर तो 1 मीटर बाय स्टर्न था इनिशियल, यस सर। फाइनल 1 मीटर बाय हेड है, हाँ तो 2 मीटर हो गया ना। तो टीसी 2 मीटर है। ठीक है प्लस हो जाएगा उसको। तो टीसी 2 मीटर बाय हेड है। हाँ अगर इनिशियल 1 मीटर बाय स्टर्न है, यस सर, फाइनल 2 मीटर्स बाय स्टर्न तो है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो टीसी 1 मीटर बाय स्टर्न है। यस सर। In which case the GF will be forward. फॉरवर्ड G ऑफ is द forward. आफ्टर फॉरवर्ड। ठीक है Forward of the center of rotation. ठीक है सर। Forward of the center of rotation. Please remember, आपको इसमें GF मिल रहा है इस फॉर्मूले में। करेक्ट वो सर, आफ्ट फ्लोटेशन होगा या सर। फॉरवर्ड होगा? यस सर। Okay. नाउ क्लियर सर। Okay. So what I'm saying is, depending on GF, whether it is aft or forward, that will give me the point of grounding, whether it is aft or forward of center of rotation. That is what I am trying to say. आंसर में सर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ फ्लोटेशन लिख देंगे वहां पे। GF जब मैं बोल रहा हूँ तो GF का जी मतलब है GF is with respect to center of rotation only, and I have to यस say सर। aft or forward. And then once I get my GF, then I have to give my answer in AG format, which is with respect to aft perpendicular. So my final answer should be AG. Is that okay? ओके सर। Any doubt in this? सर Any वो तो doubt? मतलब विद
ग्राउंडिंग वाला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आफ्ट परपेंडिकुलर हम निकालेंगे तो फिर वो तो आगे ही आएगा ना सर, आफ्ट परपेंडिकुलर के। तो इसलिए मैंने इसमें फॉरवर्ड एंड आफ्ट तो लिखा ही नहीं ना, एजी तो उतना ही है। मैंने खाली जीएफ ठीक में है लिखा सर। है, मैंने खाली जीएफ में लिखा है। तो सर आंसर ओके हमेशा सर। एजी एजी रखेंगे ना सर, चाहे दैट्स वो राइट, चाहे that's फॉरवर्ड के right. कितने वाले हो, हमेशा एजी रखेंगे आंसर को। ओके दैट्स सर। राइट। और इस फॉर्मूले से आपको जीएफ मिलेगा, ये याद रखना है बस। यस सर। मतलब जीएफ में हमने जरूर लिखना है आफ्टर के फॉरवर्ड है सर, वो हमने लिखना ही हाँ, लिखना है। वो लिखना ही लिखना है जीएफ में। ठीक है सर। और फिर एजी में उसका आंसर उसका जो आएगा। ठीक है सर। ओके। राइट। ओके, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन पास्ट पेपर का था हाँ जी, बोलिए। सर, वो ट्रिम और लिस्ट का क्वेश्चन था हैंडशिप का। हाँ, वो भी मैं कराऊंगा अभी। दैट आई हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 84 आई हैव स्टिल टू डू। ओके सर। Actually I'd come with that plan, but since there वर्डिंग were थी सर, doubts, तो थोड़ा सा कंफर्म करना था और कुछ नहीं था उसमें no, सर। no, 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 I'll be doing that question in class because that's a very popular question and it comes as a 30 mark question, so I don't want to let go of that. ओके सर। So I'll be doing that whole question in class. So probably I'll be doing that tomorrow. कल करूँगा. ओके सर। Okay. हाँ जी, any other question? सर एक हैंडशिप का क्वेश्चन था सर। हाँ जी, बोलिए. सर फ्लोटिंग इन सॉल्ट वाटर इवन कील पे है सर, मतलब सर हाउ मच ballast should run from forward to after peak to make her even kill condition when seas goes salt to fresh water? वो अभी मैंने आपको कराया नहीं है. वो लोग हम लोग सर करेंगे ना सर। वो चेंज ऑफ ट्रिम ड्यू टू चेंज ऑफ डेंसिटी मैंने अभी कराना है. वो ओके भी, सर। that is a topic which is yet to be done. ओके सर। Okay, this is the question which I was talking about, which has come in the past papers. This is question number 2 of April 15. This is the question which I was talking about. A vessel of length 140 meters, W 16,000 tons, MCTC 190, TPC 24, LCF 72, KM 8.2,
km 8.2, kg 7.2. FSM 1370. Forward draft, initial forward draft 6.68, initial aft draft 8.84. Grounds on a rock. The drafts then are observed to be final drafts 5.88, and 9.28. Calculate various things, P, point of G, point of grounding, सब कुछ निकालना है. इसमें सब कुछ निकालना है आपने. So calculate. ये होमवर्क दे दूं मैं आपको, आप होमवर्क में कर लेना इसको. ठीक है सर, वो कर लेंगे सर. तो इसको P करना है आपको, देन AG करना है आपको, VGM फ्लूइड करना है आपको, थीटा करना है आपको, एंगल ऑफ हील if she grounds 3 meters to starboard, 3 meters to starboard of center line, and finally rise of tide required for her to refloat. ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है, ठीक है. तो उसको तसल्ली से करना ये क्वेश्चन को, इसमें बहुत कुछ निकालने को बोल रहा है. एंड दिस क्वेश्चन is pretty similar to question number 97 of Inship. फर्क यह है कि ये A-ship का है. तो अगेन इनिशियल ट्रिम से शुरू करना. इनिशियल ट्रिम ये वाली है आपकी, यानी कि 14 minus 8 6, 7 minus 6 1, 8 minus 6 2, 2.16 meters stern is the initial trim. Final trim 8 minus 8 0, 12 minus 3.4. 3.4 meters stern. So now what do you infer by this? Basically, the trim has increased. That means जो आपका GF है वो आफ्ट आएगा ना सर? फॉरवर्ड ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन होगा कि नहीं? फॉरवर्ड है, क्योंकि इंक्रीज हो गई है ना ट्रिम, तो फॉरवर्ड आएगी. ये देखो, ये समझने की बात है कि आपकी इनिशियल फाइनल ट्रिम ज्यादा हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज मेरे को आगे से पुश करके मेरी ट्रिम को बढ़ा रही है. यस और नो? यस सर. तो ये समझना बहुत जरूरी है. एंड देयरफॉर AG जो भी आएगा वो LCF प्लस GF होगा. 72 प्लस जो भी आएगा वो आपका AG बनेगा. वो आपका सेकंड का आंसर है. गॉट इट? यस सर. सो इस प्रॉब्लम को कैसे शुरू करोगे?
जीएफ like to निकालना start? पड़ेगा ना सर? शुरुआत कैसे करोगे? How would you like to start this problem? पहले पी निकाल लेंगे ट्रिम चेंज कैसे निकालोगे? पी कैसे निकालोगे? वही पी के लिए जीएफ निकालना तो वही पड़ेगा। टीसी निकाल के सर मीन राइज निकाल के वही फाइनल हाइड्रोस्टेट ड्राफ्ट इनिशियल हाइड्रोस्टेट का मीन राइज, फिर उसके बाद पी निकाल के वहां से। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो शुरुआत आप करोगे इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से और वहां से फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको मीन राइज देगा, और वो वहां से पी आ जाएगा। यहाँ से आपका पी आए, ये पी आपका ये आ गया। फिर आप चले जाओगे ट्रिम चेंज में टीसी के फॉर्मूले में और फिर जीएफ निकालोगे। Is that okay? The rest you should be able to follow. बट सर इसमें हमने ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि अपने पास जीएफ नहीं था स्टार्टिंग में। ये इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि जीएफ नहीं था स्टार्टिंग में, नंबर 1, एंड नंबर 2 फॉल भी नहीं दी हुई मुझे क्वेश्चन में। दोनों रीजन, दोनों रीजन की वजह से, क्योंकि मेरे पास फॉल भी नहीं है, वो भी मुझे नहीं दिया हुआ कहीं पे कुछ में, और मेरे पास जीएफ भी नहीं है। जी मतलब वो जरूरी नहीं है सर कि पी के लिए वही हमेशा लॉन्ग वाला फॉर्मूला ही यूज होना है ग्राउंडिंग के क्वेश्चन में भी। इट कैन बी फाइंड आउट इन एनी वे। लेकिन अगर फॉल दी हुई है तो मुझे लॉन्ग ही यूज करना है। जी ओके सर। अगर मेरे को फॉल दी हुई है तो तब बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है सर, ओके। देन अगर फॉल दी हुई है तो देन आई एम ईदर इन T1 और आई एम इन T2 जोन। ओके सर। तो बी केयरफुल ओवर देयर। तो बेसिकली हमारे ये T1, T2, T3 ये तीन ही हैं जो हमारे टाइप्स आएंगे इस शिप के। ठीक है सर, वो फॉल का थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज हम कर सकते हैं वो यूज। करेक्ट, ठीक है। इसको जरा घर में करना अच्छे तरीके से, एंड देन बिकॉज ये पास पेपर का क्वेश्चन है ना, और ये बड़ा पॉपुलर है। यस सर, ये जैन 70 में भी आया हुआ है, बट पार्शियली सारा चीज नहीं पूछा है सर। हाँ, बिकॉज उस वक्त जब आया था ये अप्रैल 15 में, तो 5 चीजें एक साथ आ गई थी बहुत सारी, तो मतलब तहलका मच गया था। फिर उसके बाद में कहा था कि नहीं 5 बहुत होता है, या तो 3 चीजें मांगो, 2 या 3 चीजें पूछो, इतनी सारी चीजें मत पूछो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। सो देन उसको डाइल्यूट किया गया था क्वेश्चन को। हाँ सर, तो सर 50 नंबर का क्वेश्चन देना चाहिए। हाँ, मतलब बिकॉज 5 बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है ना, इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग, घुमा देता है पूरा। You know how to do it. It's not that you don't know how to do it. You know how to do it. But it's so time consuming. Okay. ठीक है?